Hello students, it's the second video of the straight line method of depreciation. It's the second video of the straight line method of depreciation. In the previous video, we discussed how to calculate the amount of depreciation when the rate of depreciation is not given, then the accounting treatment if the rate of depreciation is given, how to prepare the asset account, then we discussed the accounting treatment when different additions are made to the assets. Now let's continue further with the sale of the asset. An asset may be sold before the end of its useful life. Its useful life may be 10 years, 15 years, and that asset can be sold before that useful life period. The value at which an asset is purchased along with the expenses incurred on its purchase and installation is the original cost. जो भी हम एसेट्स को जब भी हम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो भी खर्चा उस समय जो एक्सपेंसेस इनकर होते हैं ऑन द परचेज ऑफ दैट एसेट और ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ दैट एसेट, तो वो हम ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड करते हैं. ये मैंने पहले भी आपको बताया है. और जब वो कॉस्ट इस्तेमाल में आएगी तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हर साल. तो व्हेन depreciation is deducted from the original cost, we get the written down value or the book value. Book value or written down value is equal to original cost minus depreciation. For example, let us take the example. If the asset is, if the cost of the asset is 45,000, this is the cost, and installation expenses say it is 5,000. So total cost is 50,000 is the original cost. And say if 10% is the rate of depreciation. 10% is the rate of depreciation. So every year we will charge 5,000 depreciation. और डेप्रिसिएशन हम उतने ही पीरियड के लिए लेते हैं जितने पीरियड के लिए एसेट इस्तेमाल हुई है. अगर पूरे साल के लिए हुई है तो पूरे साल का लेंगे. अगर ये कम पीरियड के लिए इस्तेमाल हुई है तो हम इसको कम पीरियड के लिए लेंगे. तो हम 5,000 इसको लेस कर देंगे. से 5,000 जब लेस कर दिया तो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी 45,000. 45,000 उसकी बुक वैल्यू है. लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो अगर इसको हमने बेच दिया, अगर एसेट इज सोल्ड फॉर रुपीज़ से 50,000, अगर सोल्ड फॉर रुपीज़ 50,000, तो दैट मीन्स 5,000 विल बी दी प्रॉफिट. 5,000 विल बी दी प्रॉफिट. तो इसका अब किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा वो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से इसको डिस्कस करेंगे, किस तरह से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की आपको एंट्रीज भी एक्सप्लेन की थी पिछले वीडियो में कि जब एसेट बेची जाती है, व्हेन एसेट इज सोल्ड, तो कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश इज इंक्रीज्ड, पैसा आएगा, कैश इज इंक्रीज्ड, सो दिस एसेट इज डेबिटेड बिकॉज cash is increased, so it is debited. And this particular asset is decreased because it has been sold out, so particular asset account is credited. Now when the profit is earned, profits are always credited. Profit को credit किया जाता है तो asset account debit to profit and loss account. When loss is suffered, loss को हमेशा debit किया जाता है तो profit and loss account debit to asset account. ठीक है. दिस कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज द प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ योर बुक, सेल ऑफ द टोटल एसेट. सेल ऑफ द टोटल एसेट व्हेन द टोटल एसेट इज सोल्ड. A machine was purchased on 1st April 2015. A machine was purchased on 1st April 2015. Let's make a summary. 1st April 2015 को एक मशीन परचेज की है हमने फॉर रुपीज़ 10,000 एंड इट इज़ सोल्ड ऑन 30th September.
sold on 30th September 2018 for rupees 6,000. This is sold, this is purchased, and it is sold for rupees 6,000. Prepare the machinery account for 4 years and calculate the profit and loss account on the sale of the machine assuming 10% depreciation per annum. तो 10% depreciation हर साल पे उस पर चार्ज करना है on the straight line method. Books are closed on 31st March. So 1st April 2015 को एक मशीन परचेज़ की गई, 10,000 की मशीन परचेज़ की गई और बेचा कब है उसको 30 सितंबर 2018. तो 1 अप्रैल से जो हमारा पूरे साल की पहले साल देखो 1 अप्रैल 2015 और बुक्स क्लोज कब होंगी हमारी 31 मार्च को हमारी होंगी 2016 को क्लोज होंगी. तो हम फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लेंगे क्योंकि ये पूरे साल मशीन इस्तेमाल हुई है तो इसकी डेप्रिसिएशन 10% डेप्रिसिएशन, तो 1000 हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा. तो नेक्स्ट ईयर फिर हमारा 1000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा. ये बुक्स क्लोज होंगी 31 मार्च 2017. उसके बाद हमारी जो मशीन सेल हुई है वो हमारी मशीन 30 सितंबर 2018 को हुई है. तो इसका मतलब 1 साल की और डेप्रिसिएशन आ जाएगी फुल ईयर की. ठीक है, सॉरी ये आ गया 17 की, ये 16 की, ये 17 की और ये 18 की. तो हमारी जो मशीन सेल हुई है 31 मार्च 2016 को एक पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी 1000. तो मशीन की कॉस्ट कितनी रह गई 9000. 10,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस हो गया तो उसकी 9000 उसकी कॉस्ट रह गई बुक वैल्यू. 31 मार्च 2017 को और 1000 हमने डेप्रिसिएशन जो है वो लेस कर दिया. तो ये देखिए जो उसकी कॉस्ट थी 10,000 थी तो 1000 जब हमने लेस कर दिया, ये हमने 16 में हमने जब उसको कर दिया लेस कर दिया तो उसकी कॉस्ट रह गई 9000. फिर एक और 1000 और लेस कर दिया तो उसकी कॉस्ट रह गई 8000. फिर एक बार और 1000 नेक्स्ट ईयर भी उसको जब इस्तेमाल किया तो उसमें से 1000 और डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो उसकी कॉस्ट रह गई 7000 एज ऑन बुक वैल्यू ऑफ द मशीन एज ऑन 31 मार्च 2018. अब जो सेल हुई है 30 सितंबर को हुई है तो मार्च से सितंबर तक देखिए कितने महीने की अब और डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है उस पर. तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स की और डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स 500,000 का आधा हो गया ना 6 मंथ्स के लिए हमने 500 और चार्ज करेंगे. तो 6500 उसकी वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ द सेल. जब उसको बेचा गया 30 सितंबर 2018 तो उसकी वैल्यू थी 6500 और वो बेची गई 6000 पे मशीन. तो दैट मीन्स द कंपनी हैज़ सफर्ड अ लॉस पे 500 का लॉस आया. तो हमने इस वर्किंग नोट में पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट पूरा सॉल्व कर दिया कि उस पर लॉस हुआ 500 और जो उसको सेल प्राइस है उसकी 6000 और ये हर साल जो डेप्रिसिएशन किया 1000 और लास्ट ईयर उसका जो 6 मंथ्स के लिए उसका डेप्रिसिएशन जो था उसका एक बार और लिया. तो इसको अकाउंट में जब हम बनाएंगे, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अकाउंट, मशीनरी अकाउंट. ये देखिए ये इसका क्वेश्चन है कि मशीनरी वॉज परचेज्ड. तो 1 अप्रैल को आपकी परचेज़ की गई 10,000 और बेची गई है 30 सितंबर 2018 को. तो 1 अप्रैल 2015 को टू बैंक अकाउंट, ये पिछले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, जब भी एसेट परचेज़ की जाती है तो टू बैंक अकाउंट पैसा आया टू बैंक अकाउंट 10,000 एंड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है एट द एंड ऑफ द ईयर. जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा 10% 1000. तो बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस रह गया 9000. तो ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया, यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर दिया. टू बैलेंस ब्रॉड डाउन एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 2016. तो नेक्स्ट लास्ट में जब मार्च 31 को फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1000 तो बैलेंस रह गया हमारा 8000. फिर से 8000 को हमने ब्रॉड डाउन किया बैलेंस को, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1000 और बैलेंस रह गया 7000 बैलेंस रह गया 31 मार्च 2018 को. तो ये हमने ब्रॉड डाउन कर दिया 7000
नाउ अब ये हमारा है 2018 और हमारी जो मशीन सेल हुई है 30 सितंबर को हमारी मशीन सेल हुई है। तो हम पहले लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 500, ये हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी। 1000 उसकी फुल ईयर की है तो हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन उसकी आएगी। फॉर 6 मंथ्स बाय डेप्रिसिएशन 500, जैसे मैंने आपको वर्किंग नोट में बताया 500 उसकी डेप्रिसिएशन आएगी और 500 उसका लॉस आएगा। और बाय बैंक अकाउंट इट मीन्स कितने की वो सेल हुई, तो जब सेल होती है मशीन तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो एसेट को हम क्रेडिट करेंगे बाय बैंक अकाउंट से 6000 की, उस अमाउंट से हमने क्रेडिट किया एसेट को जिस अमाउंट से वो मशीन बेची गई, ये पैसा हमारे पास आया 6000 बाय बैंक अकाउंट 6000। और डेप्रिसिएशन हमने उस मशीन पे चार्ज की थी 500 और ये हमें लॉस हुआ 500। तो लॉस जब होता है तो लॉस को हम डेबिट करते हैं और एसेट को क्रेडिट करते हैं। तो ये एसेट अकाउंट बना रहे हैं तो एसेट के क्रेडिट में आ गया, लॉस भी क्रेडिट किया, डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट किया और बैंक को हमने क्रेडिट किया क्योंकि जो हमारी एसेट सेल हुई है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो एसेट को हम क्रेडिट करेंगे। ये हमने दोबारा से ये जो मैंने बनाया था कि आपने डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज की है और जो आपका 31 मार्च को बैलेंस बच गया था 7000 बुक वैल्यू बच गई थी उसकी मशीन की। सबसे पहले मशीन की 10000 की थी, फिर हमने 1000 डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज किया तो वो उसकी वैल्यू रह गई 9000, फिर 1000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर उसकी वैल्यू जो बच गई वो है 8000, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1000, तो वैल्यू उसकी एज ऑन 31 मार्च 2018 उसकी वैल्यू थी 7000 और हमने हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन और चार्ज किया टिल 30 सितंबर, तो चार्ज किया तो ये उसकी वैल्यू है एज ऑन 30 सितंबर 2018, तो ये उसकी वैल्यू है 6500। तो वो एसेट बेची गई 6000 की, दैट मीन्स 500 जो है वो नुकसान है। तो लॉस हमारा 500 है, सेल प्राइस है, ये हमारा सेल प्राइस है 6000 और ये डेप्रिसिएशन हमने टाइम टू टाइम ईयरली जो डेप्रिसिएशन भी चार्ज की है। सो लुक एट दी एसेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट 10000, डेप्रिसिएशन पहले हमने चार्ज की फर्स्ट ईयर फुल डेप्रिसिएशन 1000, then again full depreciation, then again full depreciation, then in the last year 2018 because the asset has been sold on 30th September, so for 6 months depreciation has been charged for 6 months 500. This is the depreciation and this is the sale price of the machinery and this is the loss. I hope you have understood this concept. Now next is the part of the asset is sold. When the part of the asset is sold, तो इसको हम एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करेंगे। In case the asset is sold off in the middle of the year, amount realized should be credited to the asset account. Depreciation should be credited to the asset for the actual time it has been used during the year of sale, and any balance left in the asset account will be profit and loss account and it should be transferred to the profit and loss account, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। Now part of the asset is sold. जब कुछ पार्ट, पूरी एसेट्स नहीं सेल की जाती, हमारे पास बड़ी तरह की एसेट्स हैं और उसमें से कोई एसेट हम बेच देते हैं या उस एसेट का कोई पार्ट बेच देते हैं, तो दिस कंसेप्ट I will explain with the help of the problem number 8 of your book. A firm purchased 2 vehicles at the rate of 1,20,000 each on 1st August 2017. इसकी समरी बना लेते हैं। एक क्वेश्चन में काफ़ी सारी एसेट्स परचेज़ की हैं, तो सबसे पहले हम समरी बना लेते हैं कि 1 अगस्त 2017 को 2 व्हीकल्स परचेज़ की गई हैं, वो 120 ईच। कितनी व्हीकल्स हैं? 2 व्हीकल्स आर परचेज्ड फॉर 1,20,000 ईच। हर एक व्हीकल की जो कॉस्ट है 1,20,000 to serve for 10 years at the end of which scrap shall be 25% of the cost price. स्क्रैप कितना है इस मशीन का?
स्क्रैप इज़ द 25% ऑफ द कॉस्ट। तो अगर हम 25% कॉस्ट का करेंगे तो ये हमारा आएगा 30,000। तो स्क्रैप कितना है? 30,000 इज़ द स्क्रैप। और लाइफ कितनी है? लाइफ इज़ 10 ईयर्स। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट मशीन। तो फर्स्ट मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? डेप्रिसिएशन आएगी हमारी 1,20,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 9,000 पर एनम हमारी मशीन की। दो मशीन है तो हर एक मशीन की जो डेप्रिसिएशन होगी 9,000 पर एनम। ठीक है, एक मशीन की हमने जो दो मशीन्स खरीदी थी उनकी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। नाउ सेकंड मशीन देखो। अनदर व्हीकल was acquired on 1st October 2011. 1st October 2011। 1st October 2011 और इसकी कॉस्ट है 1 लाख। जो सेकंड मशीन है 1st अक्टूबर 2011 को परचेज हुई है और उसकी कॉस्ट है 1 लाख और उस पर डेप्रिसिएशन हमने लगाना है 10%। उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो इसका 10% आ जाएगा 10,000। तो फर्स्ट मशीन की जो हमने डेप्रिसिएशन थी 9,000 पर एनम। दोनों जो मशीन हमने खरीदी थी, वहीकल खरीदी है सॉरी, और जो सेकंड हमने वहीकल परचेज की है 2011 को जो परचेज की गई थी वो है 10,000, उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। नाउ थर्ड देखिए, ऑन 1st अप्रैल 2018। थर्ड वन 1st अप्रैल 2018 अ न्यू व्हीकल वॉज एडिड फॉर रुपीज़ 50,000। तो वो व्हीकल परचेज की गई 50,000 की टू सर्व फॉर 5 ईयर्स। अब इसमें रेट नहीं दिया है। जो ये वाली व्हीकल है, ये जो थर्ड व्हीकल है दैट विच इज़ परचेज ऑन द 1st अप्रैल 2018 एंड हुज कॉस्ट इज़ 50,000। तो इसकी हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट गिवन और स्क्रैप भी नहीं दिया, ईयर्स दिए हैं, लाइफ दी है, लाइफ इज इक्वल टू 5 ईयर्स दिया है। तो इसकी डेप्रिसिएशन किस तरह से निकलेगी? 50,000 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 10,000 जो है ये हमारी डेप्रिसिएशन निकलेगी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट मशीन की 9,000, सेकंड की भी 10,000, थर्ड की भी 10,000। किस तरह से निकाला हमने? कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, बिकॉज स्क्रैप इज़ नॉट गिवन। तो स्क्रैप वी एज्यूम कि स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसकी भी हमें जो इसकी भी हमारी जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी 10,000। नाउ let us find out if there is another vehicle on 1st April 2000 new vehicle was added 50,000 on yes एक और अभी परचेज की है on 1st October 2019 one vehicle bought on 1st ये तो सेल हो गई, was auctioned at 20% of the vehicle। तो ये सेल हो गई है। तो ये हमारे पास 3 व्हीकल्स हैं। तो 1 अगस्त 2017 को, अब हमें क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, यहीं समरी से ही देख लेंगे। 1 अगस्त 2017 को 2 व्हीकल्स वर परचेज्ड फॉर रुपीज़ 1,20,000 ईच। तो स्क्रैप है 30,000, इसकी हमने डेप्रिसिएशन निकाली 9,000 पर एनम। और 1 अक्टूबर 2011 को हमारी एक मशीन व्हीकल है 1 लाख की और 10% डेप्रिसिएशन है, 10,000 डेप्रिसिएशन। एक 1 अप्रैल 2018 की 50,000 की जो व्हीकल है उसकी डेप्रिसिएशन भी 10। तो हमारे पास 3 नहीं 4 हैं, क्योंकि ये 2 व्हीकल्स हैं। तो इन चारों की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली है। इन चारों की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। ये 2 व्हीकल हैं, ये एक व्हीकल है, ये भी एक व्हीकल है। तो ये 4 व्हीकल्स की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली है। पहले हम यहाँ तक सम कर लेते हैं। ये देखिए व्हीकल हमने परचेज़ की है। पहले हमारा आ जाएगा, देखो 1 अगस्त 2017 को परचेज़ की है
टू बैंक अकाउंट 1 अगस्त 2017 को परचेज़ की है। टू थाउजेंड सेवेंटीन को परचेज़ की है। तो ये हमने 2017 को परचेज़ की है 1 अगस्त 2017 को। तो 1,20,000 ईच, सो इट मीन्स अमाउंट आएगा 2,40,000। 2,40,000। तो 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन बुक्स क्लोज करेंगे। 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा, और सेम ईयर को ये 2017 ही है, ये 11 नहीं है, 2017 है, ये 2017 ही है, ठीक है, क्योंकि ये 17 में है तो 11 कैसे हो सकता है। 2017 को 1 अक्टूबर को हमने परचेज़ की है। तो 1 अक्टूबर को वन मोर व्हीकल इज़ परचेज्ड टू बैंक अकाउंट एंड व्हीकल इज़ परचेज्ड फॉर 1 लाख, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 व्हीकल्स हो गई, एक 1 अगस्त को 2 खरीदी हैं और 1 अक्टूबर को 1 व्हीकल हमने खरीदी है टू बैंक अकाउंट 1 लाख। अब डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन जो पहली मशीन हमने खरीदी है वो 1 अगस्त को खरीदी है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो डेप्रिसिएशन हम लेंगे 8 मंथ्स के लिए। तो मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती हूँ। डेप्रिसिएशन हमारे पास था फुल ईयर का 9,000 इंटू 8/12। तो 8/12 अगर हम इसको कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6,000। तो हमारा डेप्रिसिएशन आया 6,000। तो 6,000 डेप्रिसिएशन है, और मशीन्स कितनी है हमारे पास, व्हीकल हैं 2 व्हीकल हैं, प्लस ये हमने ये जो इसकी डेप्रिसिएशन ली है, ये डेप्रिसिएशन है 1 लाख, और 1 लाख की डेप्रिसिएशन थी 10,000 हमने कैलकुलेट किया था। ये 1 अक्टूबर को हमने ली है, परचेज़ की है 1 अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हमें 10,000 इसकी डेप्रिसिएशन थी। तो 10,000 हमारी डेप्रिसिएशन थी। तो 10,000 इंटू 6/12, 10,000 इंटू 6/12, बिकॉज द व्हीकल हैज़ बिन यूज फॉर 6 मंथ्स। तो इसका हाफ कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5,000, ठीक है। तो ये हमारा 6,000 को हमने इंटू 2, क्योंकि 2 व्हीकल्स हैं, तो डेप्रिसिएशन दोबारा से देख लो, ये 9,000 इसकी डेप्रिसिएशन थी पूरे साल की, 8 महीने के लिए इस्तेमाल की गई व्हीकल। तो 6,000 डेप्रिसिएशन थी, तो 6,000 इंटू 2 प्लस जो सेकंड मशीन थी दैट वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर, तो दैट मशीन वाज यूज्ड फॉर 6 मंथ्स ओनली, तो डेप्रिसिएशन है 5,000। तो ये आ गया 17,000। टोटल डेप्रिसिएशन हमारी इस साल की डेप्रिसिएशन 17,000 आ जाएगी। देन बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आएगा 323,000, 323,000, और इसको हम क्लोज कर देंगे 3,40,000, 3,40,000। तो ये 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018, और बैलेंस जो ब्रॉट डाउन हुआ है 323,000, 323,000। अच्छा, अब देखेंगे हम नेक्स्ट मशीन कौन सी इस्तेमाल की है। नेक्स्ट है हमारी मशीन जो इस्तेमाल की गई है, यहाँ पे देखेंगे, ये वाली 1 अप्रैल 2018 को मशीन परचेज़ की है 50,000। तो ये भी 1 अप्रैल 2018 ही है। टू बैंक अकाउंट मशीन है 50,000 की, तो डेट है 1 अप्रैल 2018, ठीक है। और डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31 मार्च 2019,
2019। अब डेप्रिसिएशन देखिए, जो फर्स्ट मशीन है उसकी डेप्रिसिएशन थी 9000 और वो हैं 2 व्हीकल्स हैं, मशीन नहीं व्हीकल्स हैं। 9000 थी, अब इस वो पूरे साल इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है। 9000 मशीन की डेप्रिसिएशन है फॉर फुल ईयर और वो 2 व्हीकल्स हैं, तो 9000 इंटू 2, सॉरी मशीन नहीं व्हीकल है, 9000 इंटू 2, तो ये हमारी आ गई, सॉरी इनकी डेप्रिसिएशन आ गई। जो नेक्स्ट मशीन है इसकी डेप्रिसिएशन आएगी 10000, इसकी 10000 डेप्रिसिएशन है, 10000 डेप्रिसिएशन है। और इसकी कितनी डेप्रिसिएशन है, इसकी भी 10000 आ रही है, फुल ईयर की है क्योंकि ये 1 अप्रैल को ही परचेज़ की है, तो इसकी फुल ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी। तो डेप्रिसिएशन टोटल आ जाएगी 38,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। दोबारा से देख लो, ये जो हमारी सेकंड मशीन थी 50,000 की, हमने 1 अप्रैल को परचेज़ की, इसका मतलब 1 अप्रैल को परचेज़ की है, तो डेप्रिसिएशन हमें फुल ईयर की लेनी है। और डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ था, हमने कैलकुलेट किया था डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा 10,000 इसकी डेप्रिसिएशन आई थी। तो फर्स्ट मशीन की 9000 थी, फिर 10000 थी और इसकी भी 10000 थी, मशीन नहीं व्हीकल है, सॉरी, तो ये 10000 थी। तो इसी तरह से हमने ये 9000 व्हीकल की इंटू 2, क्योंकि 2 व्हीकल्स हैं, उसके बाद 10000, फिर 10000, ये 38,000 हमारी डेप्रिसिएशन आ गया। उसके बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन 335,000 और इसका जो टोटल अमाउंट आ जाएगा 373। इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 335,000 अब ये आ गया 335,000। अब हमें देखना है इस ईयर को मशीन बेची गई है, ये देखिए। ऑन 1 अक्टूबर 2019 one vehicle bought on 1 October 2017 was auctioned at 80% of the book value। तो वो सेल कब हुई है, 1 अक्टूबर 2019 को। तो ये जो हमने ये वाली जो फर्स्ट वहीकल थी ये सेल हो गई हमारी ऑन 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 को ये हमारी व्हीकल सेल हो गई एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू, एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू। 1 अक्टूबर 2019 को 80% ऑफ द बुक वैल्यू। तो अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका। देखिए इसकी कॉस्ट कितनी थी 1,20,000 इसकी कॉस्ट थी, ठीक है। फर्स्ट ईयर जो हमने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो हमने 6,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की थी। नेक्स्ट ईयर 9,000, तो इस पे एक 6,000 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी। उसके बाद हमने हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी 9,000, ये देखिए 9,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की थी। तो और ये जो सेल हुई है 1 अक्टूबर को 2019 को हुई है, तो इट मीन्स 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन और चार्ज करनी है इसके ऊपर, तो 4,500 और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अगर हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देंगे, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करते जाएंगे अगर हम, तो इसकी जो बुक वैल्यू होगी वो बचेगी 1,00,500, 1,00,500 ये इसकी डेप्रिसिएशन बचेगी। तो सॉरी इसकी डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करके ये इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी, बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2019 जब हमने सेल करना है। और सेल जो करना है वो करना है 80% ऑफ दिस, 80% ऑफ दिस वैल्यू, तो वो 80% इसका होगा 80,400 और जो इसका लॉस आएगा, जो इसका लॉस होगा वो होगा 20,100, ये इसका लॉस आ जाएगा। बुक वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, बुक वैल्यू निकालेंगे कि इसकी जो डेप्रिसिएशन है, फर्स्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन इसकी जो चार्ज की थी 6,000 की थी, बिकॉज व्हीकल हैज़ बिन यूज्ड फॉर 8 मंथ्स। नेक्स्ट ईयर फुल ईयर के लिए इस्तेमाल की थी
उसके बाद हमने 6 मंथ्स के लिए इस्तेमाल की थी। तो ये इसकी जो टोटल डेप्रिसिएशन जब हम माइनस किया तो इसकी बुक वैल्यू आ गई हमारी 1,05,000। तो इसके बाद हमने इसके जो बुक वैल्यू में से सेल प्राइस माइनस कर दिया, और सेल प्राइस क्या है, 80% ऑफ द बुक वैल्यू, 80% ऑफ दिस, 80% ऑफ दिस इज इक्वल टू 80400। ये हमारी सेल प्राइस है। 80% ऑफ दिस इज द सेल प्राइस। तो ये हमारा लॉस आ गया। अब हम जब इसको यहाँ पे करेंगे, पहले आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। मशीनरी सेल हुई है अक्टूबर 1 को, और जो सेल हुई है वो हुई है इस प्राइस पे, ठीक है। और उसके बाद हमारा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा डेप्रिसिएशन देखो कितना आएगा, जो मशीन सेल हुई है, जो मशीन सेल हुई है उसका तो 4500 ही आएगा इस ईयर। जो ये वाली मशीन का एक मशीन बची, सॉरी एक व्हीकल बची है, उसका 9000 आता है। ये इसका 10,000 आता है डेप्रिसिएशन ईयरली, और इसका भी 10,000 आता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये जो इसकी टोटल डेप्रिसिएशन आएगी वो हमारी आ जाएगी 10,000, 10,000, 4,500, 9,000, 3,500। ये टोटल डेप्रिसिएशन आ गई फॉर दिस ईयर। फॉर दिस ईयर ये टोटल डेप्रिसिएशन है, ये सेल प्राइस है। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा लॉस आएगा 20100, ये हमारा लॉस है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा, अभी यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड ऑन भी आएगा क्योंकि बाकी मशीन्स भी हमारे पास हैं। तो बाय बैंक अकाउंट अक्टूबर 1 में आएगा, ये डेप्रिसिएशन मार्च 31 को आएगा, और उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस भी अक्टूबर 1 को आ जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अक्टूबर 1 का आएगा, ये 31, ये आप नीचे लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ये नीचे आएगी, और ये मार्च 31 भी नीचे आएगा। अक्टूबर 1 की एंट्री ऊपर आएगी, ये वाली बाय प्रॉफिट एंड लॉस भी ऊपर आएगा। उसके बाद मार्च 31 की एंट्री बाय डेप्रिसिएशन नीचे आएगी। बाय बैलेंस कैरिड ऑन ये हमारा बैलेंस आएगा 201,000, और इसको हम क्लोज कर देंगे 335,000, 335,000। ये हमारा सेल प्राइस है, 80% ऑफ द बुक वैल्यू। ये हमारा डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन 4,500 है उस मशीन का, उस व्हीकल का जो व्हीकल बिक गई है, जो सेल ऑफ हो गई है, और उसकी डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स की चार्ज की है। ये सेकंड व्हीकल का जो ये दिस वन, इसमें जो एक व्हीकल बची है उसकी डेप्रिसिएशन है। उसके बाद ये इसकी डेप्रिसिएशन 10,000 है, फिर ये इसकी डेप्रिसिएशन है ये 10,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट किया है कि सेल प्राइस में से बुक वैल्यू माइनस कर दी है, तो ये हमारा लॉस आ गया। दिस इज़ द लॉस। और ये हमारा बैलेंस कैरिड ऑन, जो बाकी मशीन्स हमारे पास हैं उसका बैलेंस कैरिड ऑन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।